Good morning, class 11th. We are discussing chapter 2, forms of business organization. In our previous session, we have discussed sole proprietorship, features, limitations, and advantages. Now, today we'll start with a case study. But before we begin with case study, let's have a look at the conclusion of sole proprietorship, that it is a suitable form of business for small scale enterprises. The sole proprietorship is suitable for enterprises which require personal attention and limited capital, such as local grocery shops, small bakery shops, tailoring shop, health clinics, doctor's clinic, lawyer's office, or any other form which is suited to the proprietor. Okay, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज इसमें कोई लॉ भी यहाँ पे रूल नहीं करता है. ठीक है, ये बिना किसी लॉ के अंडर ही ये एस्टेब्लिश हो सकता है. ओके, एंड एनी वन कैन स्टार्ट एनी टाइम विदाउट एनी मच formalities. Now let's have a look at case study. Manoj is running a general store under the name Daily Needs in a local market. He takes all decision about business himself without any interference from others and get all profit as a reward for bearing the full risk. So in the context of the above case, two questions are asked. अब केस स्टडी में बच्चों क्या होता है, जनरली जब भी हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, हैव ए लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड एट द लास्ट. ओके, सो whenever you start reading any case study, because here we are discussing only one, but in exam when you get all the case studies together, then it will difficult to know from which chapter it is asked. So better to focus on the last of the question. Okay, so two questions are asked. One is, identify and define the form of business organization in which Manoj has formed his business. See, here Manoj is running general store and he takes all the decision about himself. He does not consult anyone else. So it is the sole proprietorship form of business. And second, state any four features. Now any four features you can easily state. If, see, recognition is very important. If the recognition is done perfectly, then you will get 1 mark full, because generally for the recognition 1 mark is provided during exam. I am asking, exam I am telling you that means that ratio of the marks, this is of 1 marks, and for 4 features it would be a 4 marks, then total 5 marker. Okay, it would be a 5 marker then. So very easily you can get full out of full. Then second also, let us see, Sri Ram started a confectionery business for a few years back. Due to continuous losses in business, he decided to close the business. He owns 4 lakhs to supplies firm who he had been taking goods on credit. His business funds are insufficient to repay the debts. Can supplier recover the funds from personal assets of Sri Ram, as his business assets are insufficient to repay the debts? Why or why not? Yes, of course, Sri Ram has a loss in business. Okay, and now his business also unable to pay full payment to the supplier. So this supplier can recover from Mr. Ram's personal assets, because being as a sole proprietor, Mr. Sri Ram has unlimited liability. ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जहाँ भी कहीं होती है वहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है, बट नॉट इन केस ऑफ कंपनी और आपका
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बाकी जो तीनों फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF और पार्टनरशिप, तीनों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हालांकि HUF में जो कर्ता होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ HUF, जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली तो है जो इंडिया में ही होती है, कहीं बाहर फॉरेन में तो होती नहीं है, इसीलिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल इंडिया में ही प्रेवलेंट है। नाउ slowly these kind of business organization are on the decline because diminishing number of joint Hindu families in our country, so these are declining. But you are discussing the forms of business organization, so it is must for you to know about this form also. अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, बिजनेस कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सारे जो भी मेंबर्स हैं, वो जो भी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सब लोग मिलके और बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज़ नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट, but it is governed by Hindu Succession Act, which exists under Hindu law. हिंदू लॉ के अंडर में बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। एक एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी है, तो ये इसके अंडर ये गवर्न करता है। ठीक है, इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। ठीक है, बिकॉज अगर सिंगल मेल मेंबर रहा तो फिर वहाँ पे क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। ठीक है, वो फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से वो फर्म नहीं रहेगी। और सेकंड जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी जैसे किसी पर्सन को उसके फादर से, उसके ग्रैंडफादर से और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलती है, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अपने पूर्वजों की संपत्ति। ठीक है, अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन। सपोज इफ अ हिंदू इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी रिलेटिव और फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। अब जैसे यहाँ पे मान लो 4 भाई हैं किसी फैमिली में और उनकी फर्म HUF के नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों भाइयों को उनकी शादी में ससुराल से सपोज किसी को घर मिला, किसी को कार मिली, तो अब वो जो घर है या वो कार है वो HUF का पार्ट नहीं, HUF जो बिजनेस है उसकी प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी which is inherited by the male members of Hindu undivided, inherited by मतलब उनको inherit वो उन्होंने की है अपने फोर फादर्स से, उन्होंने अर्न नहीं की है, उन्होंने अर्न की है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, वो सपोज़ वो मेल मेंबर्स वो खुद कहीं और जॉब भी करते हैं और वो अपनी जॉब से जो सैलरी उनको गेन होती है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आएगी, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ठीक है, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब होता है समान उत्तराधिकारी। ठीक है, जो वारिस होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो जो होते हैं वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स। 4 फीचर्स हैं, तो यहाँ कोई एक्रोनिम की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्मेशन जो है यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 members should be there in the family and business does not require any agreement। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस अब क्योंकि जॉइंट फैमिली के ही मेंबर्स हैं तो उनमें कोई एग्रीमेंट हो ही ज़रूरी नहीं है। अभी पार्टनरशिप में तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई भी बच्चा बाय बर्थ वो यहाँ पे HUF बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, सो
and it is governed by Hindu Succession Act 1956. अब लाइबिलिटी पे बात करते हैं. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, पर अब यहाँ पे क्या है, जो कर्ता होता है. अब कर्ता कौन होता है? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का. ठीक है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेंबर को कर्ता बोलते हैं. ठीक है, कर्ता. तो अब कर्ता की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और बाकी सबकी जो बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो यहाँ पे कर्ता's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business. पर यहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस लॉसेस कंपनसेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल पे. तो कंट्रोल जो है वो सीनियर मोस्ट पर्सन जो है वो करता, वो ही करता है. ठीक है, एंड ओनली द कर्ता हैज़ लीगल राइट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स. ठीक है, मतलब जैसे बिजनेस की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ थर्ड पार्टी से, तो वो केवल और केवल उस पर कर्ता के ही साइन होंगे, तभी वो वैलिड होगा. ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस of business. Other members have no right to take decisions in management of joint Hindu family business. And last point is that minor members, joint Hindu family business, a child becomes a member by birth only, so there is no restriction for a minor to become a member of the business. Now let us see the last point. Actually, this point is not that much important, only for your knowledge. It is important that gender equality in joint Hindu family business. Actually क्या था कि पहले यहाँ कोर्स में हिंदू जो ये HUF बिजनेस है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक मिताक्षरा और एक दाई भाग. ठीक है, पहले ये कोर्स में थी, अब नहीं है तुम्हारे. तो मिताक्षरा जो सिस्टम है वो तो ऑल ओवर इंडिया में प्रेवलेंट था, केवल और केवल वेस्ट बंगाल को छोड़ के. मिताक्षरा, ठीक है, और एक था दाई भाग. तो अब क्या था कि मिताक्षरा फॉर्म ऑफ HUF में तो जो केवल मेल मेंबर्स हैं वही डिसीजन ले सकते थे, मतलब वो ही को पार्टनर्स हो सकते थे. ठीक है, बट दाई भाग जो वेस्ट बंगाल में प्रेवलेंट था, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर्स हो सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये जेंडर इनइक्वालिटी वाली बात आ गई थी. ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रेवलेंट थी. तो इसको दूर करने के लिए पार्लियामेंट में क्या हुआ, 2004 a bill was passed to amend the Hindu Succession Act. Okay, in this amendment, women are given equal rights in joint Hindu family business. This bill was passed to remove the discrimination as contained in Section C of Hindu Succession Act by giving equal rights to daughters. ठीक है, और इसमें फिर अब क्या है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अब रिमूव हो गया है. अब मिताक्षरा फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स दोनों ही को पार्टनर्स हो सकते हैं. यानी कि जो 2004 के बाद में जितने भी HUF जो फर्म्स जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें बेटी को, मतलब डॉटर को भी वो इक्वल राइट होगा HUF जो फर्म है उसकी एसेट्स में. ओके, एंड प्रॉफिट में भी इक्वल शेयरिंग होगा. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस केस स्टडी ऑन योर ओन. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम, you can ask in our next session. Till then, goodbye. Have a nice day.